محترم ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تھا کہ اس ہاتھ کی انگلی میں بچھو نے کاٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاپوش مبارک کے ذریعہ اس بچھو کو مار ڈالا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، یا یہ فرمایا کہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور دونوں کو ایک برتن میں گھول دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو جو برتن میں تھی یعنی پانی اور نمک کو انگلی کے اس حصے پر ڈالتے جاتے تھے جہاں بچھو کاٹا تھا اور انگلی کو ملتے جاتے تھے. نیز قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے. ان دونوں روایتوں کو بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 باتوں کے لیے پیدا کیا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو آسمانوں کی زینت بنایا، اور دوسرے شیاطین و جنات کو مارنے کے لیے، اور تیسرے علامات کے لیے کہ لوگ ان کے ذریعہ جنگل و دریا میں اپنا راستہ پا سکیں. لہٰذا جس شخص نے ان ستاروں میں ان 3 باتوں کے سوا اور کوئی غرض بیان کی تو اس نے خطا کی، اپنا حصہ ضائع کیا، اور پھر اس چیز میں تکلف کیا جس کو وہ نہیں جانتا. یعنی آسمان کی چیزوں کے بارے میں جو حقوق ہیں ان کا علم قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے حاصل ہونا ممکن نہیں. اور جب قرآن و سنت میں ستاروں کی غرض ان 3 باتوں کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کی گئی ہے تو مذکورہ باتوں کے علاوہ کوئی اور غرض بیان کرنا ایسی بات کا بیان کرنا ہے جس کا معلوم ہونا متصور ہی نہیں. اس روایت کو بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے، اور رزین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور اس چیز میں تکلف کیا یعنی اس چیز کو جاننے کا دعویٰ کیا جس کا اس کو علم نہیں ہے، اور اس چیز میں تکلف کیا جس کے علم سے انبیاء اور فرشتے عاجز رہے ہیں. ربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے ستارے میں نہ تو کسی کی زندگی یعنی پیدائش مقرر کی ہے، نہ کسی کا رزق یعنی مال و جا وغیرہ، اور نہ کسی کی موت. اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی افطرا پردازی کرتے ہیں، اور ستاروں کے تو غروب ہونے کو کسی واقعہ و حادثہ کی علت قرار دیتے ہیں. تشریح: اپنا حصہ ضائع کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح لا یعنی باتوں اور بیکار امور میں مبتلا کیا کہ جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے اور نہ آخرت میں حاصل ہونے والا ہے. اس طرح اس نے گویا اپنی عمر عزیز کا قیمتی حصہ گنوایا. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. تلنگانہ بھر میں بارش سے کئی اضلاع پانی، ضلع انتظامیہ اور سیاسی قائدین بارش کی تباہ کاریوں کا لے رہے جائزہ، عوام کو ہر ممکن تعاون کا تیقن. ریاست و ضلع کے تقریباً تمام ہی آبی ذخائر لبریز، آبی پروجیکٹوں سے فاضل پانی کا اخراج. نرمل ایس پی نے باسر کا ہنگامی دورہ کرتے ہوئے لیا جائزہ. مہاراشٹر میں شدید بارش، بھینسا گڈنا پروجیکٹ لبریز، گیٹوں سے پانی کا اخراج. تیز بہاؤ سے عام زندگی مفلوج. حیدرآباد ناگپور قومی شاہراہ پر کئی کلومیٹر تک اب بھی ٹریفک جام.
महाराष्ट्र में मौसलाधार बारिश की वजह से भैंसा गड्डाना प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी में इजाफा। भैंसा कस्बे के मजफ्फात में गड्डाना प्रोजेक्ट मुकम्मल टैंक बन चुका है। ऊपर की जानिब मौसलाधार बारिशों की वजह से सैलाबी पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। इस तरतीब में जबकि इस प्रोजेक्ट में 8 फील्ड गेट हैं, हुक्काम ने 5 दरवाजे खोलते हुए 37,000 क्यूसिक पानी नीचे की वागू नदी में छोड़ दिया। सुबह 4 बजे से मंसूबे में पानी की आमद बतदरीज 5,000 क्यूसिक से बढ़कर 9:30 बजे तक 30,000 क्यूसिक हो गई। सूरत हाल का मुशाहिदा करते हुए प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने बहाव के मुताबिक बतदरीज फील्ड गेट को खोलते हुए सैलाबी पानी को वागू नदी में छोड़ा गया। फिलहाल जबकि मंसूबे में आमद 30,000 क्यूसिक जारी है, 5 फील्ड गेट से 37,000 क्यूसिक का अखराज हो रहा है। वागू नदी में 37,000 क्यूसिक की आमद से तमाम कैचमेंट इलाकों में सैलाब आने का खतरा है। वागू, शिवा मंदिर, बाईपास रोड पुल, हिंदू कब्रस्तान और डिपो के आसपास के इलाके पहले ही ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अखराज में हाल ही में 29,000 क्यूसिक से 37,000 क्यूसिक तक इजाफे से मजीद इलाका ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। सब कलेक्टर एसीपी अविनाश कुमार, टाउन एसीपी गोपीनाथ, म्युनिसिपल कमिश्नर राजेश कुमार और तहसीलदार प्रवीण वक्तन फौक्तन सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखते हुए और चौकसी पर काम कर रहे हैं। तमाम सरकारी महकमों के अहलकारों के साथ तालमेल में सैलाब की वजह से किसी भी जान व माल के नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता 4 दिनों से मौसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सैलाब की सतह में इजाफा हुआ। जबकि प्रोजेक्ट में पानी की इमदाद 4,30,000 क्यूसिक है। हुक्काम ने 39 फेलगेट खोलते हुए 5,50,000 क्यूसिक पानी गोदावरी नदी में छोड़ा। बालकुंडा मंडल के पोचमपाड़ में श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों से सैलाबी पानी की सतह में इजाफा हुआ। महाराष्ट्र और जिले के दिगर हिस्सों में शदीद बारिश की वजह से प्रोजेक्ट में फी घंटा 4,30,000 क्यूसिक की आमद हुई। इस तनाजिर में मंसूबे के 39 गेट खोलते हुए 5,50,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। जैसे ही गेट खोले गए और पानी को छोड़ा गया, हुक्काम ने गोदावरी नदी के ज़ेरे कब्जे इलाकों की अवाम को अलर्ट कर दिया। माहीगीरों और किसानों को खबरदार किया कि वो दरिया की तरफ ना जाए। मंसूबे में पानी की मौजूदा सतह 1,086 फीट है और जखीरा करने की गुंजाइश 62 टीएमसी है। साबिक एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने गुज़िश्ता 2 दिनों से दही हल्के में शदीद बारिश की वजह से तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया। उन्होंने मुतासिरा खानदानों की अयादत की, जिनके घर सैलाब की वजह से तबाह होने और इन्हें अपने ताउन का यकीन दिलाया। साबिका एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने देही हल्के के सिरकुंडा, दरपली, इंदलवई, जकरानपल्ली, मुप्पाल मंडलों में शदीद बारिश से तबाहशुदा फसलों का दौरा किया। उन्होंने किसान खानदानों की इयादत की जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा और उन्हें हौसला दिया। कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा। बास देहातों और तांडों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से चावल, कपड़े और जरूरी सामान पानी में भीग गया। बच्चों और बूढ़ों का बुरा हाल था। सैकड़ों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गई। कई मकानात पानी में डूबने से अवाम को परेशानी का सामना है। साबिक एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन, जिन्होंने मुतल्लिका देहात का दौरा किया, सैलाब से होने वाले नुकसानात का मुआयना किया और गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत किसानों और मुतासिरा खानदानों की मदद करे। इस मौके पर बाजिरेड्डी ने कहा कि आफात के वक्त सियासत किए बगैर मुतासरीन की मदद करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुदल तांडा, वाड़ी और देहात में काफी नुकसान हुआ और अवाम शदीद परेशानी में है, क्योंकि मुतियाला वागू नदी तेजी से बह रही और पुश्ता टूट गया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से कहा कि वो फौरी तौर पर अपनी आंखें खोले और हर घर को 50 किलो चावल और सब्जियों के साथ दालें, नमक, तेल और पकाने के बर्तन फ्राहम करें। साबिक सीएम केसीआर और साबिका वजीर बीआरएस पार्टी वर्किंग सदर केटीआर ने पार्टी सफ़ों को हिदायत दी कि मुतासिरा अवाम के साथ खड़े रहे।
వాళ్ళందరూ మనవాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు ఇమీడియట్గా తొందరగా చేపట్టి మరి వాళ్ళకు పూర్తి సహాయం అందించాలని నేను కోరుతున్నా. వస్తు చూసిన నేను మద్దతుతండ కొంతమంది గిరిజనుల యొక్క పొలాలు మునిగిపోయినాయి, తెగిపోయినాయి, ఇసుక మెట్లు పడ్డాయి. వాడి గ్రామంలో కూడా చాలామంది పొలాలు తెగిపోయినాయి, ఇసుక మెట్లు పడ్డాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే మెయిన్లీ ముత్యాల బాగు తెగిపోవడం వల్ల. పైన ముత్యాల బాగు చాలా పెద్ద చెరువు, అది ఆ చెరువు తెగిపోవడం వల్ల ఇవన్నీ బీభత్సం జరిగినాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఈ బీభత్సంలో చాలామంది అన్ని రకాలుగా నష్టపోయింది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే కళ్ళు తెరిచి, నేను అనుకుంటున్నా నేను ఎమ్మెల్యే కూడా వచ్చిపోయినట్టున్నారు, అధికారులు కూడా వస్తున్నారు, కరెంటు స్తంభాలు కూడా వేస్తున్నట్టున్నారు. ఏదేమైనా కానీ చాలామంది నిరాశలు అయిపోయి మరి గ్రామస్తులంతా కలిసి ఒక దగ్గర వంటలు చేసి భోజనాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు ప్రభుత్వం ఇమీడియట్గా స్పందించి ప్రతి ఇంటికి కనీసం ఒక ½ క్వింటాల్ బియ్యం ఇచ్చి పప్పులు, ఉప్పులు, నూనె, ఇవన్నీ బట్టలు అవన్నీ ఇచ్చి ఇమీడియట్గా ఆదుకోవాలా. మా పార్టీ తరఫున కూడా మేము కొంత సాయం చేస్తాం. మేము కేసీఆర్ గారి యొక్క చలవ వల్ల, మరి కేటీఆర్ యొక్క ఆజ్ఞ వల్ల మమ్మల్ని తిరగమని చెప్పారు కాబట్టి తిరుగుతున్నాను నేను. మరి ఈ బీభత్సం చూస్తూ ఉంటే ఇది చాలా ప్రళయం. ఇది గత 100 ఏళ్ళలో ఎప్పుడు కూడా రాలేదంటారు. चाशंबे का रोज कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लोगों के लिए एक डरावने ख्वाब में बदल गया। सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश शाम तक जारी रही। जिला कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश की वजह से कामारेड्डी जिला पानी में डूब गया। टैंकों के बह जाने से शहर और देहात गोदावरी की तरह बह रहे। कामारेड्डी जिला मरकज में एक बड़ी टैंक नहर बह गई और सैलाब जीआर कॉलोनी में दाखिल हो गया कामारेड्डी नदी हाउसिंग बोर्ड के ऊपर से बह रही। कस्बे में हनुमान कॉलोनी, रुक्मणी कुंटा, गांधी नगर, वासवी नगर और टीचर्स कॉलोनी वो कई मुकामात पर और राइस मिलें पानी में डूब गई। कामारेड्डी जिले के राजमपेट मंडल के अलगुंडा में 44 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जिले के बाशिंदों ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ कि कामारेड्डी जिले में 12 घंटों में 33.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बांसवाड़ा डिवीजन में चाशुंबे की रात से होने वाली मुसलसल बारिश में फसलों के खेत ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए मंजरा इस वक्त तगयानी का शिकार हो गया जब निजाम सागर प्रोजेक्ट तक जबरदस्त सैलाब आया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के 39 गेट खोलते हुए हुक्काम ने बड़ी मिकदार में पानी छोड़ा। नीचे गोदावरी की नदियां बह रही। इससे जगतियाल जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल में कुमटी, कोंडापुर और इरधंडी गोदावरी नदियों की सतह में इजाफा हुआ। पानी का बहाव फसलों के खेतों तक पहुंचने से मकई, सोयाबीन और हल्दी की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। किसानों की 6 माह की मेहनत से लगाई गई फसलें पानी में डूब गई। उनके खेतों में पानी दाखिल होने पर किसानों ने गहरी तशवीश का इजहार किया। फकीर, कोंडापुर, यमापुर को जोड़ने वाले पुल की तामीर के लिए हाल ही में आरसी सड़क सैलाबी पानी में बह गई, जिससे अवामी तहरीक में शदीद खलल पड़ा। इस तनाजिर में कोरटला एमएलए के संजय कुमार ने गोदावरी नदियों, कैचमेंट इलाकों और तबाहशुदा आरजी सड़क का दौरा किया। एमएलए संजय ने मुतल्लिका ओहदेदारों से फसल के नुकसान की तफसीलात दरियाफ्त की। इस मौके पर खिताब करते हुए कोरटला एमएलए के संजय कुमार ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब रहे। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो किसानों को माली इमदाद फराहम करे जिनकी फसलें तबाह हो गई, और हुकूमत पर जोर दिया कि वो फकीर, कोंडापुर और यमापुर को जोड़ने वाले पुल पर काम करने वाले ठेकेदार को बिल अदा करे और इस बात को यकीनी बनाए कि काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఇంకా వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రస్తుతానికైతే సేఫ్ జోన్లో ఉన్నాము. కానీ ఇంకా వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రజలందరినీ జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తూ, అదేవిధంగా ఇక్కడ కొన్ని వ్యవసాయం దెబ్బతినడం జరిగింది. సంబంధిత రైతులకు ప్రభుత్వం నుంచి వెనువెంటనే వాళ్ళందరికీ కూడా కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ, అదేవిధంగా ఇప్పుడు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఫకీర్కొండాపూర్, వర్షకొండ గ్రామాలు ఇబ్రాహింపట్నం మండలంలో ఇక్కడ ప్రతిసారి వర్షం పడినప్పుడు ఆ గ్రామాలు ఇటువైపు కూడా ప్రజలు ప్రయాణించలేని పరిస్థితి. అంతకుముందు ఆల్రెడీ రెండింటికి కూడా బ్రిడ్జ్లు శాంక్షన్ అయినాయి. సో వెంటనే ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళొకసారి విన్నవించుకుంటా ఉన్నాను. వెంటనే ఆ సంబంధిత బిల్లులు ఇస్తే ఆ కాంట్రాక్ట్ తొందరగా అవుతాయి. ఇవాళ ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ ఫకీర్కొండాపూర్ గ్రామానికి
ప్రజలు పోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. సో దయచేసి సగంలో ఆగిపోయిన బ్రిడ్జ్ని వెంటనే ఫినిష్ చేయాలని చెప్పి మలుగుసం ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ, అదేవిధంగా వర్షకొండ బ్రిడ్జ్ కూడా శాంక్షన్ అయినది, వర్షకొండ గ్రామానికి పోవాల్సిన బ్రిడ్జ్ కూడా అది కూడా వెంటనే చేయించాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి जिला निजामाबाद में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। बालकोंडे के एमएलए प्रशांत रेड्डी, जिन्होंने सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा किया, हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों को इमदाद फराहम करे जिनकी फसलें तबाह हो गई है। एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुतल्लिका ओहदेदारों और कायदीन के हमरा बालकोंडा हल्के के भीमगल और बड़ा भीमगल गांव में सैलाब की वजह से तबाहशुदा सड़कों, पुलों और ज़ेरियाब फसलों का दौरा किया। अपस्ट्रीम में वाक़ई देही हल्के में कई तालाबों के टूटने से कपाला वागू में सैलाब में इजाफा हुआ, जिससे बालकोंडा हल्के में हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। महकमा ज़राअत के हुक्काम के मुताबिक इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक 1162 एकड़ पर धान की फसल, 95 एकड़ पर मकई और 35 एकड़ पर सोयाबीन को नुकसान पहुंचा। वेलपुर रमनापेट सड़क पर पुल और सड़क को नुकसान पहुंचा। वेलपुर के वस्त में सड़क और पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आरमूर भीमगल रोड पर कपाला वागू पर ऊंचे दर्जे का पुल सैलाब की वजह से एक तरफ मुंतकिल हो गया। एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सैलाब से तबाहशुदा सड़कों, पुलों का मुआयना किया। एमएलए ने ज़राई ओहदेदारों के साथ गांव के नरसरेड्डी और महेश नामी किसानों की मकई की फसल का मुआयना किया, जो कपाला वागू के सैलाब की वजह से 5 एकड़ में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने उन किसानों से इजहार ताज़ियत किया जिनकी फसलों को शदीद बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा। उन्होंने हुकूमत से 25,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा देने का मुतालबा किया और मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हुकूमत को रिपोर्ट करें जो तबाहशुदा सड़कों, पुलों की तामीर का तखमीना तैयार करेंगी और तजवीज़ पेश की कि भीमगल बड़ा भीमगल सड़क मुकम्मल तौर पर खस्ता है, इसकी आर्जी मरम्मत करके सड़क को बहाल किया जाए। इसके अलावा कमरपल्ली ऊपरी सड़क को नुकसान पहुंचा और इसकी आर्जी मरम्मत का हुक्म दिया। एमएलए प्रशांत रेड्डी ने अवाम से कहा कि वो नदियों के करीब ना जाए। నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలో 3 చెరువులు తెగిపోయి ఆ నీళ్లు ఒకటేసారి కప్పలవాగులోకి రావడం వల్ల ఒకటేసారి విపరీతంగా ఉధృతంగా, అంటే అటు ఒక 1/2 కిలోమీటర్ ఇటు ఒక 1/2 కిలోమీటర్ వరద బారింది అని చెప్తున్నారు వాగులలో. ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద మనుషులు చెప్తా ఉన్నారు, మేము మాకు తెలిసినప్పటి నుంచి మేము చూడలేదు ఇంత వాగు పారడం అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సరే, మనం ఏం చేయలేము, అది ప్రకృతి వైపరీత్యం, మరి భగవంతుడి దయ. కాబట్టి ఆ విపరీతమైన ఈ వాగు వృద్ధి వల్ల వాగొడ్డున ఉన్నటువంటి పంటలు కూడా నష్టపోవడం జరిగింది. పొలాలు కావచ్చు, మక్కలు కావచ్చు, సోయలు కావచ్చు, అవన్నీ కూడా ప్రిలిమినరీ ఎస్టిమేట్ చేయించినాం. ప్రిలిమినరీ ఎస్టిమేట్ ప్రకారం మొత్తం నియోజకవర్గంలో 1162 ఎకరాల్లో వరి పంట నష్టం జరిగింది అని చెప్తున్నారు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు. అట్లనే 95 ఎకరాల్లో మక్క నష్టం జరిగిందని చెప్తున్నారు. 30 ఎకరాల్లో సోయా నష్టం జరిగిందని చెప్తున్నారు. నేను మళ్ళీ ఇవాళ రేపు కూడా వెరిఫై చేయమన్నాను. మరి నిన్న మొన్న వర్షాల్లో మీరు సరిగా చూడకపోతే మరి మళ్ళీ వెరిఫై చేయమని చెప్పాను నేను అధికారులకు. ఎందుకంటే చాలామంది రైతులు నేను ఏ గ్రామానికి పోయినా మా పంట నష్టం జరిగింది అన్న మాట మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ అధికారుల లెక్కలు చూస్తేనేమో తక్కువ కనిపిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి మళ్ళీ ఇవాళ రేపు కూడా సర్వే చేసి ఫైనల్గా మీరు ఒక ఫిగర్కి రండి అని చెప్పినాను. నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, వరి పంటకు ఎక్కడైతే వరి నష్టం జరిగిందో వరి పంటకు ఎకరానికి 25,000 రూపాయలు, అట్లాగే మొక్కజొన్నకు కూడా ఎకరానికి 25,000 రూపాయలు, సోయాకు కూడా 25,000 రూపాయలు, అంటే ఎక్కడెక్కడైతే పంటలు దెబ్బతిన్నాయో 25,000 రూపాయలు ఎకరానికి రైతులకు నష్టపరిహారము సహాయం చేయాలని చెప్పి నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. हैदराबाद नागपुर नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम। रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश के बाद कामारेड्डी जिले में वाक़ कौमी शाहराह नंबर 44 पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखा जा रहा। सड़क के कट जाने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट पैदा हो रही। हैदराबाद से आदिलाबाद के सिमत जाने वाली गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही। सदाशिव नगर मंडल से भिकनूर टोल गेट तक तकरीबन 15 किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई है। चारशंबा और जुमेरात को होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में टेकरियाल और सारमपल्ली के मुकाम पर पुल को नुकसान पहुंचा। एक और मुकाम पर सड़क बह गई। इन हालात के बाद चारशंबे से ही गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद खलल पड़ रहा। जुमेरात की रात भी बड़ी तादाद में गाड़ियां रुकी रही।
जिस पर एसपी राजेश चंद्र ने खुद सूरत हाल का जायजा लिया। ट्रैफिक जाम के बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम ने मुतालिबा किया कि सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए ताकि आमदोरफ्त बहाल हो सके। निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला आईपीएस ने बासर गोदावरी नदी की सैलाबी हालात का किया मुआयना। गुज़िश्ता 2 रोज से जारी मुसलसिल मौसलाधार बारिश के बाद जिला भर में नदी नालों में तुग़यानी देखी जा रही। इस पस मंजर में निर्मल जिला पुलिस सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर जी जानकी शर्मिला आईपीएस ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। जिला एसपी ने हल्का असम्बली मुधल के मंडल बासर से गुजरने वाली गोदावरी नदी के किनारे वाक़ई ज़ेरियाब इलाकों का बज़ाते खुद मुआयना किया। खास तौर पर नदी के किनारे पर मौजूद 3 लॉज में फंसे हुए खानदानों और अकीदतमंदों तक ट्रैक्टर के जरिए पहुंचकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। डॉक्टर जानकी शर्मिला ने पुलिस ओहदेदारों और अमले को हिदायत दी कि अवाम को किसी भी किस्म की तकालीफ ना हो और फौरी राहती इक़दामात जैसे खाने पीने का सामान और साफ पानी मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम को होशियार रहने की जरूरत है। इस मौके पर गोदावरी नदी के किनारे मौजूद गंगा पुत्र तैराकों की खिदमत काबिल सताइश है। గోదావరి వరద పరిస్థితిని పరిశీలించడానికి వచ్చాను ఇక్కడికి. అయితే ఇక్కడ దీక్ష లాడ్జ్ ఇంకా కొన్ని లాడ్జెస్ ఈ రివర్ బెడ్లో కట్టడం వల్ల కొంచెము మునిగిపోయాయి. దగ్గర ఇప్పుడు మనకి ఒక 3 ఫీట్ వరకు వాటర్ వచ్చింది. అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కొంచెం వాటర్ వెళ్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. వాళ్ళందరికీ ఫుడ్ అండ్ ఇతర అరేంజ్మెంట్స్ గ్రామ సర్పంచ్ అలాగే పోలీసులు కలిపి చేస్తూ ఉన్నారు. సో వెళ్ళి అక్కడ పరిశీలించడం జరిగింది. వాళ్ళు అందరూ సేఫ్గానే ఉన్నారు. వాళ్ళని అది 3 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇదంతా అందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ బాగా రోడ్ మీదకి వస్తుంది. గోదావరి బ్యాక్ వాటర్ అంతా అన్ని హైవేస్ మీదకి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇటువైపు ఎవరు రావద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అలాగే మిగిలిన వారు కూడా ఎక్కువ బయట తిరగకుండా प्रॉपर प्रिकॉशंस తీసుకుంటూ जिला मेदक में मंजीरा नदी के बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से मंजीरा का सैलाब तेजी से बह रहा है। इसके साथ ही जिला मेदक का दुर्गा मां मंदिर एक बार फिर पानी में डूब गया है। मंजीरा नदी मंदिर के करीब बह रही है क्योंकि सिंगूर प्रोजेक्ट ने 5 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। दुर्गा मां मंदिर 10 दिनों में दोबारा सैलाबी पानी में डूब चुका है। शदीद बारिश की वजह से मंदिर में एक बार फिर सैलाब आ गया। बड़ी किनाल डेयरी फार्म के करीब किनाल से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तहकीकात शुरू की। निज़ाम सागर किनाल बड़ी किनाल डेयरी फार्म के करीब मुकामी अवाम को पानी पर तैरती एक नाश दिखाई दी, जिसे देख वहां मौजूद अफराद ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और नाश को पानी से निकाला। पुलिस ने नाश का मुकम्मल मुआयना किया और शनाख्त हासिल करने की कोशिश की, लेकिन खबर पड़े जाने तक मरने वाले शख्स की शनाख्त नहीं हो पाई और मौत पानी में डूबने से हुई, खुदकशी और दूसरे जाविये से भी पुलिस छानबीन कर रही। बाद पंचनामा नाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी दवाखाना के मुर्दा खाना मुंतकिल किया और तहकीकात का आगाज किया। 3 रोज से रियासत सैलाब की जद में है। किसी और मुकाम से नाश पानी के तेज बहाव में बहकर आने का भी शुबा अवाम ने जाहिर किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना भर में बारिश से कई अजला पानी पानी। जिला इंतजामिया और सियासी कायदीन बारिश की तबाहकारियों का ले रहे जायजा। अवाम को हर मुमकिन ताउन का तयक्कुन।
रियासत व जिले के तकरीबन तमाम ही आबी ज़खायर लबरेज आबी प्रोजेक्टों से फाजिल पानी का अखराज निर्मल एसपी ने बासर का हंगामी दौरा करते हुए लिया जायजा। महाराष्ट्र में शदीद बारिश, भैंसा गड्डना प्रोजेक्ट लबरेज गेटों से पानी का अखराज, तेज बहाव से आम जिंदगी मफलूज। हैदराबाद नागपुर कौमी शाहराह पर कई किलोमीटर तक अब भी ट्रैफिक जाम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।